Good morning to all of you, my dear friends. Welcome back to my channel, that is the Sharp Mind Coaching Center. Today I will discuss about some important questions of economics and marketing. Okay, let us start from the first question. In which type of economy price is determined by demand and supply? That is, first option is socialist economic or capitalist economic or monopoly or all of these. In which type of economic price is determined by demand and supply? That is capitalist economic. In this type of economic, the private is control over all production activities. So the demand and supply is determined by price in capitalist economics. So option B is our correct answer. In a socialist economics, what will happen? The private individual is control over all the activities. In a socialist economics, the price is controlled by all the production activities is controlled by the government. In this case, the demand and supply doesn't determine by the price. So option B is our correct answer. Then next question number 2. In which type of economic private sector control economic? In a socialist economic, the all economic activity is controlled by the government. In capitalist economics, the all the economic activities is controlled by the government private sector. So option B is also correct answer. Question number 2. In which sector? Question number 3. Then question number 3. Then question number 3. Question number 3. Which sector is the largest employer in India? Which sector? Primary sector or secondary sector, tertiary sector or IT sector? Which sector is the largest employer in India? All of you know that primary sector is the largest employer in India, as agriculture activities or any manufacturing activities are connected with the primary sector. So primary sectors gives the largest employment, that is almost 60% of the employment are arise from the primary sector. In the secondary sector, whatever the things are manufactured in the first sector, that are utilized to form some things in a secondary sector. Tertiary sector is related to entertainment, retail or wholesaling. These are related to tertiary sector. So primary sector is the largest employer in India. So option A is the correct answer in case of question number 3. Then question number 4. Question number 4. Question number 4. Who advocated the Pura model to eradicate the rural poverty? Who advocated the Pura model to eradicate rural poverty? रूरल पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए कौन सा मॉडल, पूरा मॉडल कौन दिया था? एम.एस. स्वामीनाथन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एम. खुसरो और डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम. पूरा मॉडल कौन दिया था? डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने दिया था. ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम. देन क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5. हु रिलीज द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स? पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन रिलीज करता है? ठीक है, वर्ल्ड बैंक. ऑप्शन ए में क्या है? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और यूएनडीपी, दैट इज
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और एशियन डेवलपमेंट बैंक। कौन रिलीज करता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स? यूएनडीपी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ना? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। एंड इसका वो क्या रिलीज करता है ना? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को रिलीज करता है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 6, कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? एफडीआई। क्वेश्चन नंबर 6, एफडीआई refers to which term? फिक्स्ड डिपॉजिट इंडेक्स्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट। FDI, all of you know that FDI refers to the foreign direct investment, foreign direct investment. Option number C, option number C is the correct answer, foreign direct investment. Then question number 7, question number 7, when the National Stock Exchange of India established? When the National Stock Exchange of India established? In 1992. National Stock Exchange of India is established in 1992. Option number D. Who among the following is most benefited from the inflation? जब इन्फ्लेशन हो जाता है वो कौन सबसे बेनिफिटेड होता है? गवर्नमेंट, पेंशनर, क्रेडिटर्स, सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर और डिबेटर्स। जब इन्फ्लेशन हो जाता है, इन्फ्लेशन मतलब जब गुड्स का प्राइस और सर्विस का प्राइस क्या हो जाता है? बहुत इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इस टाइम में कौन सबसे बेनिफिट होता है ना? डिबेटर्स। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर हम 9 देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है ना? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ फॉरेन कैपिटल इनफ्लो टू इंडिया? ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ फॉरेन कैपिटल इनफ्लो टू इंडिया, मतलब फॉरेन से जो मनी आता है इंडिया को, कौन सा इसमें कौन सा सही नहीं है? ठीक है, एफडीआई मतलब क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसमें तो मनी आता है। एफपीआई, इसमें भी मनी आता है। एनआरआई अकाउंट में भी तो फॉरेन से इंडिया को मनी आता है, लेकिन वो डी ऑप्शन नहीं है। चिट फंड से फॉरेन से इंडिया को मनी नहीं आता है, वो चिट फंड नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? चिट फंड। देन क्वेश्चन नंबर 10, हु इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड का रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है? ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए में है क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और SEBI, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया स्टॉक एक्सचेंज। Which is the regulatory authority of mutual fund and stock market? That is SEBI, that is Security Exchange Board of India. Then question number 11, the headquarters of Asian Infrastructure Investment Bank, Asian Infrastructure Investment Bank, that is AIIB, Asian इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शंघाई, बीजिंग, टोक्यो, न्यू दिल्ली। कौन सा होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा बीजिंग। बीजिंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ AIIB, दैट इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। देन क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है? गवर्नमेंट इम्पोज, IM वहां पे लिखा है, इम्पोजेस टैक्स टू चेक द एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ एमंग रिच। जो
रिच आदमी है, इस वहाँ पे जो इसके पास जो वेल्थ एक्यूमुलेशन है इसको चेक करने के लिए टैक्स इम्पोज किया जाता है। रन द मशीनरी ऑफ स्टेट, कंट्री का जो मशीनरी है इसको रन करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करता है क्या? अपलिफ्ट वीकर सेक्शन को अपलिफ्ट करने के लिए टैक्स इम्पोज किया जाता है कि ना? नहीं। देखो इसमें कौन सा सही आंसर होगा, इसमें बी आंसर सही होगा, 12 नंबर का बी, टू रन द मशीनरी ऑफ स्टेट। दैट मीन्स कंट्री का जो मशीनरी होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट वर्क होता है, इसको रन करने के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए? मनी चाहिए। वो मनी कैसे वो कलेक्ट करेगा? टैक्स लगा के, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर हम 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, which of the following committee was established to double the farmer income by 2022? 2022 तक हम कौन सा कमेटी एस्टेब्लिश हुआ था जो फार्मर का इनकम को डबल करने के लिए वो काम कर रहे थे? कौन सा कमेटी? रंगराजन कमेटी, नचिकेत कमेटी, अशोक दलवाई कमेटी, नॉन ऑफ द एबव। कौन सा सही होगा आंसर? आंसर इसमें होगा अशोक दलवाई कमेटी। अशोक दलवाई कमेटी was established to double the farmer income by 2022, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 14 देखें। 14, who of the following introduced the concept of human development index? Who among the following introduced the concept of human development index, that is HDI, human development index? First human development index concept was given by डॉक्टर महबूब उल हक। वो एक पाकिस्तान इकोनॉमिस्ट है, वो दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, डॉक्टर महबूब उल हक। वो एक पाकिस्तान इकोनॉमिस्ट है, ठीक है। देन फर्स्ट, और भी क्या याद रखना है ना, फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड बाय इन इंडिया वाज पब्लिश्ड बाय मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट टू रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट इन मार्च 2002, ठीक है। इसको भी याद रखना है, कौन सा स्टेट फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट दिया था इंडिया में, वो कौन सा स्टेट? मध्य प्रदेश, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 15, इकोनॉमिक प्लानिंग इज ऑन यूनियन लिस्ट। इकोनॉमिक प्लानिंग इज इन व्हिच लिस्ट? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और नॉट एनी स्पेसिफाइड लिस्ट। कौन सा आंसर सही होगा? जो हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग होता है वो कौन सा लिस्ट में आता है? वो आता है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट क्या है? वो यूनियन लिस्ट प्लस स्टेट लिस्ट, वो दोनों को मर्ज कर देंगे जब, तब वो क्या होगा ना, कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में क्या होगा, जो यूनियन लिस्ट में आएगा और स्टेट लिस्ट में आएगा, वो दोनों को मर्ज करने से वो कंकरेंट लिस्ट में आएगा। वो इकोनॉमिक प्लानिंग कौन सा लिस्ट में है ना, कंकरेंट लिस्ट, वो कंकरेंट लिस्ट में आएगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, व्हिच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक contributes maximum to the gross national product? Which sector of Indian economic contributes maximum to the gross national product? कौन सा सेक्टर मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करता है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के लिए हमारा कौन सा सेक्टर मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करता है? दैट इज टर्शियरी सेक्टर।
tertiary sector contribute maximum to the gross national product. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा. देन क्वेश्चन नंबर 17, which sector, देखो, which sector is the mainstay of Indian economy? Which sector is the mainstay of Indian economy? Manufacturing, business, public sector or agriculture? All of you know that agriculture sector is the mainstay of Indian economy. Indian economic में सबसे बड़ा जो रोल है किसका है? एग्रीकल्चर का है. एग्रीकल्चर क्या है? ऑप्शन नंबर डी में है. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका. देन नेशनल डेवलप 18 नंबर क्वेश्चन देखो, 18 नंबर क्वेश्चन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज सेटअप इन व्हिच ईयर? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल किस ईयर में सेटअप हुआ था? 1952 में हुआ था. 1952 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल सेटअप हुआ था. अभी वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल डिफंक्ट है, इसका यूज अभी नहीं है. अभी इसके बदले में क्या आया है? नीति आयोग, NITI, नीति आयोग आया है, जो कब से फंक्शनल हुआ है? 1 जनवरी 2015 से वो काम कर रहा है. वो अभी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का कोई भी रोल नहीं है. ठीक है. देन हम क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे. 19, व्हिच इज द बेस्ट मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री? इसमें कौन सा जो मेजर करता है इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री? एक कंट्री का इसमें कौन सा मेजर करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है? कौन सा? GNP, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट रेवेन्यू और नॉन ऑफ दिस. which represent the economic growth of a country? that is GDP, that is gross domestic product. वो मेजर करता है एक कंट्री इकोनॉमिकली कितना ग्रोथ कर रहा है. Who proposed the first budget of Republic India in 1950? First budget of Republic India was represented by whom? John Mathai. John Mathai first represent. Option number A. John Mathai proposed the first budget of Republic India in 1950. 1950 में जब रिपब्लिक इंडिया का फर्स्ट बजट कौन रिप्रेजेंट किया था? जॉन मथाई ने रिप्रेजेंट किया था. ठीक है. ओके, थैंक यू, बाय, गुड नाइट, टेक केयर. ओके, बाय बाय.